ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ پاک وطن کا یہ ٹکڑا جسے ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن گلشن اقبال کہا جاتا ہے، کراچی کے مشرق میں واقع خوبصورت علاقے میں اپنے محل وقوع کے اعتبار سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ گلشن اقبال ٹاؤن میں ملک کی 5 یونیورسٹیاں ہیں، جن میں کراچی یونیورسٹی، NED یونیورسٹی اور سر سید یونیورسٹی شامل ہیں، جبکہ 2 بڑے ہسپتال، کراچی شہری حکومت کا مرکزی دفتر سیوک سینٹر، پاکستان کا بہترین بین الاقوامی معیار کا ایکسپو سینٹر اور دنیا کا نواں جدید ترین کرن کینسر ہسپتال واقع ہے۔ اس ٹاؤن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے۔ گلشن اقبال ٹاؤن کراچی شہر کا وہ ٹاؤن ہے جہاں سب سے زیادہ نقل مکانی ہوتی ہے۔ 13 یونین کونسلوں پر مشتمل یہ ٹاؤن اپنے فلیٹس پروجیکٹس کی انفرادیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ ٹاؤن کی 13 میں سے 7 یونین کونسلوں میں شہری بلدیاتی نظام اور 6 یونین کونسلوں میں دیہی نظام قائم تھا۔ اس طرح اب بھی ٹاؤن کی 30% آبادی دیہی علاقوں اور کچی آبادی پر مشتمل ہے، جو کہ زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ گلشن اقبال ٹاؤن میں سابقہ KDA کی 3 بڑی رہائشی اسکیمیں گلشن اقبال، گلستان جوہر اور گلزار ہجری واقع ہیں۔ گلشن اقبال جو کہ 95% ترقی یافتہ ہے، گلستان جوہر جو ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے، جبکہ گلزار ہجری ابھی ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہے اور بہت ساری بنیادی شہری سہولیات سے محروم ہے، جہاں 75% ترقیاتی کام ہونا باقی ہیں۔ کراچی کی معروف سڑک شہید ملت روڈ سے شروع ہونے والا یہ ٹاؤن لیاری ندی کے ساتھ ساتھ تقریباً 100 مربع کلومیٹر کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کا دوسرا کنارہ حیدرآباد جانے والی سپر ہائی وے سے جا ملتا ہے۔ اپنی وسعت اور آبادی کے لحاظ سے کراچی کے بڑے ٹاؤن میں شمار ہونے والا گلشن اقبال ٹاؤن ترقی کے مراحل تیزی کے ساتھ طے کر رہا ہے۔ کراچی کے تمام ٹاؤنز کی طرح ٹاؤن میونسپل ایڈمنسٹریشن گلشن اقبال میں بھی شہری سہولتوں کا فقدان تھا اور ٹاؤن انتظامیہ کو بے انتہا مسائل ورثے میں ملے۔ ٹاؤن کی منتخب انتظامیہ نے جب 14 اگست 2001 کو اس ٹاؤن کی باغ ڈور سنبھالی تو مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہوئے دن رات انتھک محنت کے بعد ابتدائی مہینوں میں ہی اپنے انتہائی محدود وسائل کے باوجود لوگوں کے مسائل تیزی کے ساتھ حل کرنا شروع کر دیے۔ یوں تو کراچی شہر مسائل کا جنگل ہے، تاہم گلشن اقبال ٹاؤن کے مسائل کچھ زیادہ ہی تھے۔ نئی منتخب ٹیم نے ہنگامی بنیادوں پر ایک پلان آف ایکشن تیار کیا، جس کے تحت ترجیحات کا تعین کرنے کے بعد کام کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ چونکہ منتخب نمائندے عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے تھے، اس لیے گلشن اقبال ٹاؤن کے ناظم اور نائب ناظم نے ہر علاقے کے لوگوں سے روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتوں اور تبادلہ خیال کا سلسلہ شروع کیا اور ان کے مسائل سنے۔ ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آئی کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے انتظامیہ کو متحرک کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ جو نیا نظام انٹروڈیوس کیا ہے پریزیڈنٹ مشرف صاحب نے،
تو یہ بہت اچھا نظام ہے، کیونکہ اس نظام کے تھرو جو ہے آنے کے بعد روٹ لیول پر جو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس میں بہت آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ میں اس میں 2-3 مثالیں دوں گا کہ اس نظام کے آنے کے بعد جو ایک چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہے یونین کونسل، اس یونین کونسل میں تقریباً پچھلے سال جو ہے 50 لاکھ روپے کی رقم سے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ایک یو سی میں، جس میں سٹی گورنمنٹ کے تھرو 35 لاکھ انہیں ملے ہیں، اور اپنے وسائل سے اور او زیڈ ٹی کے ذریعے جو ماہانہ یو سیز کو ملتے ہیں اس کے ذریعے کم از کم 50 لاکھ روپے ہر یو سی میں ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں یو سی میں۔ پھر ٹاؤن کی سطح پر ہم نے 9 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ پھر اسی طرح سٹی کے تحت بھی کروڑوں روپے کے پروجیکٹ ہوئے ہیں۔ اگر یہ ٹوٹل کیا جائے تو ہر ٹاؤن میں یہ کروڑوں میں جو ہے نا رقم پہنچتی ہے جو کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اتنی خطیر رقم اور اتنے بڑے پیمانے پر روٹ لیول پر جا کر ڈیولپمنٹ کے کام جو ہے نا کبھی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جہاں یہ نظام کی مطلب خوبیاں بھی ہیں، اس میں 1-2 چیزیں جو مطلب ہمیں پرابلم ہیں، جو مسائل پیش آ رہے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ سٹی گورنمنٹ میں جو ٹاؤن کی سطح پر جو چیزیں ڈیوالو ہو کے آنی تھی، اس میں بڑے بڑے 3 ادارے ہیں۔ ایک واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو ڈیوالو ہو کے آنا تھا ٹاؤن میں، وہ ابھی تک اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ کے بی سی اے بلڈنگ کنٹرول کو جو ہے ڈیوالو ہو کے ٹاؤن کی سطح پر آنا تھا، وہ نہیں ہوا ہے۔ اور اسی طرح کچی آبادی کا جو ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، اس کو بھی ڈیوالو ہو کے سٹی گورنمنٹ اور ٹاؤن کی سطح پر آنا ہے، کیونکہ میرے ٹاؤن میں تقریباً 30% آبادی کچی آبادی ہے، اور اس کے مسائل کے لیے عوام، وہاں کے منتخب نمائندے، ناظمین ہم سے رجوع کرتے ہیں، اور ہم ان کی آبادیوں میں کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ ڈپارٹمنٹ ڈیوالو ہو جائے گا ٹاؤن کی سطح پر تو ہم ان کی لیزنگ کا کام بھی شروع کر دیں گے، اور انہی سے ڈیولپمنٹ کی مد میں جو ہے نا پیسے لے کے وہاں ڈیولپمنٹ کا کام مزید تیزی سے کریں گے۔ پانی زندگی ہے، یہ سب جانتے ہیں، اور یہی ٹاؤن کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے کی رقم سے پکی آبادیوں میں جزوی اور کچی آبادیوں میں خصوصی طور پر پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا گیا۔ کراچی شہر کے کسی بھی ٹاؤن کے اپنے وسائل سے پانی کی فراہمی کے لیے مکمل کیا جانے والا یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ٹاؤن میں ان میں سے بیشتر آبادیاں مثلاً شانتی نگر، ڈالمیاں، حاجی آئل گوٹ، اقبال گوٹ، سچل گوٹ اور پہلوان گوٹ گزشتہ 50 سال سے پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم تھیں۔ اس منصوبے کے تحت گلشن اقبال ٹاؤن میں پانی کی فراہمی کے لیے 30,000 فٹ لائنیں بچھائی گئیں۔ پہلے یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ روڈز کمپلیٹ تھیں، پانی کا مسئلہ تھا، اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ تھا، کوئی رات میں آنے کو تیار نہ تھا ٹیکسی والا۔ اب اللہ کا کرم ہے کہ یو سی ناظم اور گلشن ٹاؤن کے تحت انہوں نے جو یہاں پر یہ کام کا آغاز کیا ہے، یہ بہت اچھا کیا ہے، اور اس کا مزید سلسلہ چلنا چاہیے۔ یہ سٹی گورنمنٹ آئی ہے، کافی سارے کام ہوئے ہیں، اور سڑکیں تقریباً ساری بن گئی ہیں یہاں پہ، اور جو سب سے بڑا کام ہوا ہے اس حوالے سے وہ ہوا ہے ہمارے علاقے کے اندر پانی کی سپلائی کا۔ پانی کی فراہمی کے بعد اہم ترین مسئلہ نکاسی آب کا ہے۔ منتخب نمائندوں نے جب ذمہ داری سنبھالی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سیوریج کا نظام شاید کبھی ٹھیک ہی نہ ہو۔ اس کی بنیادی وجہ نکاسی آب کا وہ ناقص نظام تھا جس میں پورے گلشن اقبال کا بیرون نکاس کا نظام برساتی نالوں سے منسلک کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ گلشن اقبال ٹاؤن میں شاید ہی کوئی ایسی سڑک ہو جو سیوریج کے ناقص نظام سے متاثر نہ ہوئی ہو۔ دوسری جانب نالوں کی صفائی پر 10 سالوں میں کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ صرف 2 سال کے قلیل عرصے میں نہ صرف گلشن اقبال ٹاؤن کے تمام نالوں کی صفائی کی گئی اور ہزاروں ٹن کچرا اور مٹی نکالی گئی۔ اس کے علاوہ حالیہ غیر معمولی ریکارڈ بارشوں کے باوجود یونیورسٹی روڈ اور دیگر شاہراہیں ایک دن میں ڈی واٹرنگ کے ذریعے صاف کی گئیں، جبکہ ماضی میں انہی شاہراہوں پر بارش کا پانی سڑکوں پر ہفتوں موجود رہتا تھا اور عوام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ سیوریج کے 4 بڑے منصوبے شروع کر کے سیوریج کے نظام کو کافی حد تک برساتی نالوں سے الگ کر دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے سیوریج کی بڑی لائنیں بچھائی گئیں۔
गुलशन इकबाल में निकासी याब के इन 4 बड़े मंसूबों पर तकरीबन 8 करोड़ रुपए की लागत आई। इनमें से 2 मंसूबे ज़ेरे तकमील हैं। इसके अलावा कई और मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। 2 साल के दौरान अच्छे काम हुए हैं, जबकि ये टाउन नाज़म साहब और हमारे जो काउंसलर साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, ख़ासकर स्पेशली सीवरेज का निज़ाम। इधर सीवरेज के जो मसले थे, बहुत सारे मसले हमारे हल कर दिए, और रोड वगैरह जो है भी टाउन की तरफ से तामीर हो गए हैं। गुलशन इकबाल टाउन में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 300 किलोमीटर तवील सड़कों का जाल फैला हुआ है और उनकी देखभाल भी एक मुश्किल और दुश्वार गुजार अमल है। और ऐसे वक्त में जबकि 1/3 से ज्यादा सड़कें टूट फूट का शिकार थीं और फौरी मरम्मत की तालिब थीं, टाउन की मुंतखब क़यादत ने 23 करोड़ रुपए की खतीर लागत से 100 किलोमीटर से जायद अहम तरीन शाहराहों मसलन राशिद मिन्हास रोड, सहबा अख्तर रोड, शब्बीर अहमद उस्मानी रोड और दूसरी छोटी बड़ी सड़कों की मशीनी असरकारी की। इस काम का सिलसिला मुसलसल जारी है और टाउन में मुतासिरा सड़कों की तामीर और मरम्मत तेजी से जारी है। हम जब मुंतखब होकर अपने मनसब पर फायज हुए तो कराची के हालात बहुत ख़राब थे। कराची की सड़कें, कराची के फ्लाई ओवर्स, कराची के पार्क, कराची में पानी का और सीवरेज का निज़ाम, कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, कराची में तालीम और सेहत का निज़ाम, ये सारे निज़ाम बहुत ही गुफ्ताबे हालत में थे। अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल के अंदर हमने हर शोबे के अंदर इस्लाहात किए हैं, हर शोबे में हमने कुछ काम किए हैं, जिसकी वजह से कराची अब एक बदला हुआ शहर नजर आता है। कराची रोशनियों का शहर जो गुज़िश्ता 12 सालों से अपनी शनाख्त खो चुका था, सड़कें और गलियां स्ट्रीट लाइट से महरूम हो गई थीं। गुलशन इकबाल टाउन ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए टाउन की गलियों और सड़कों को असर नो मुनव्वर करने का अहद किया और 1 करोड़ से जायद की लागत से 7000 स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब कर दी गई है। बहैसियत नायब नाज़िम और कन्वीनर काउंसिल मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि गुलशन इकबाल टाउन काउंसिल ने अपने 2 साल अरसे में 19 इजलास किए अपने, उसमें 44 सेशन थे हमारे, और हमने कम पेश 224 करारदादें मंजूर की, डेवलपमेंट से लेकर और आम अवामी मसाइल के हवाले से, और उसको हमने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेजा। गुलशन इकबाल टाउन में डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं और इन डेवलपमेंट वर्क्स में हमारे गुलशन इकबाल टाउन की काउंसिल का उसकी क्वालिटी में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी प्रोग्रेस में बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमने हमारे यहाँ काउंसिल में मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं, उन मॉनिटरिंग कमेटीज़ के ने टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की और गुलशन इकबाल टाउन में क्वालिटी वर्क, वक्त और मकाम का होना और सही कीमत में होने पर उस मॉनिटरिंग कमेटीज़ ने काउंसिल की बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम लोग इस पोजीशन में हैं कि हम अपने काउंसिल के इजलास में बैठते हैं। यहाँ पर जो भी फैसले किए जाते हैं उन पर एतराज़ करने का, और अगर हम उन्हें सही समझते हैं तो उन्हें पास करने का हमें पूरा अख्तियार है। हम अपने इजलास में बैठते हैं और फैसले करते हैं। KBCA, उसके बाद वाटर बोर्ड एंड सेवरेज, तीसरी कच्ची आबादियाँ, ये तीनों डिपार्टमेंट हमारे टाउन में नहीं है, इनको मुंतकिल नहीं किया गया, ना सिटी लेवल पर ना टाउन लेवल पर। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि ये तीनों इदारे हमारे टाउन में जम करें। ये वसाइल की कमी होने के बावजूद गुलशन टाउन ने बहुत ही मयारी काम करवाया जो अरसा दराज से नहीं हो पाया था। कामों की फहरिस्त तो बहुत लंबी, लेकिन मैं चंद बातें यहाँ पे कोट करना चाहूँगी। जैसे सड़कों की तामीर जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी और यहाँ के मकीनों को चलने फिरने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह सड़कों की तामीर बेहतरीन तरीके से हुई है, कुछ हो गई है, कुछ बाकी है जो आइंदा सालों में हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाउन में बहुत सारे काम किए और बहुत सारे काम होते हुए नज़र भी आते हैं और लोग उसको महसूस भी करते हैं, उसका जिक्र भी करते हैं हमारे साथ आके।
मगर उसके बावजूद हम लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होती है। पहले ही तजर्बा है हम लोगों का, हमने हमारी हुकूमत ने इतनी तादाद में ख़वातीन को आगे लेकर आए हैं, तो उन ख़वातीन के लिए जो थोड़े से मसाइल जो पैदा होते हैं उन मसाइल को भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए टाउन और सिटी थोड़ी बहुत हमारी मदद करता है, मगर हुकूमत से भी हम चाहेंगे कि वो हमारी मदद करे। मिसाल के तौर पे कि मीडिया पर वर्कशॉप्स रखी जाएँ, या मीडिया से हमारे बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, या हमारे बारे में इनको तालीम दी जाए। पार्क्स किसी भी शहर की रौनक, खुशहाल और आलूदगी से पाक मुआशरे की अलामत हैं। कराची के 1900 से ज्यादा पार्क्स और खेल के मैदानों में से 350 पार्क्स सिर्फ गुलशन इकबाल टाउन में वाक़ हैं। इनमें से बेशतर सहरा का मंजर पेश कर रहे थे, जिनकी बहाली मुंतखब क़यादत के लिए एक चैलेंज से कम न थी। लोगों के लिए पार्क तफरीह का जरिया है, इसलिए नौ मुंतखब क़यादत ने टाउन में वाक़े मुख्तलिफ पार्कों की तज़ीन व आराइश के लिए इक़दामात शुरू किए। इस सिलसिले में पार्कों को गोद लेने के मंसूबे के तहत अब तक 10 पार्कों और 6 चौराहों को आवाम की शिरकत से खूबसूरत बनाया जा चुका है। इस सिलसिले में अवाम का ताउन भी काबिल तारीफ है। ये पार्क जो है पहले कई अरसा से उजड़ा हुआ था, इसमें कोई काम नहीं हुआ था। अब इनके टाउन की इंतज़ामिया की वजह से, टाउन नाज़म जो हैं इनकी वजह से यहाँ पे जो है काफ़ी ये पौधे वौधे लगे हैं, खाद वाद मट्टी वट्टी डाली गई है। पहले बंदों का आना जाना नहीं था यहाँ पे, अब शाम में काफ़ी चहल पहल होती है इस पार्क में। पार्कों के मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए मुंतखब क़यादत ने एक नर्सरी कायम करने का फैसला किया, जहाँ इस वक्त 25 लाख रुपए मालियत से ज़्यादा 2 लाख मुख्तलिफ अक़साम के पौधे दस्तयाब हैं, जो कि पूरे टाउन की ज़रूरियात को पूरा करेंगे। दरियासना कराची का मुनफरिद मंसूबा अस्करी पार्क भी गुलशन इकबाल टाउन के क़ल्ब में शुरू किया गया है, जो कि पुरानी सब्जी मंडी की जगह वाक़ है। अपनी तकमील के बाद ये शहर का एक खूबसूरत और मिसाली पार्क होगा। इस नए निज़ाम की जिम्मेदारी संभालने के बाद हमने गुलशन इकबाल टाउन के अंदर तकरीबन 50 पार्क डेवलप कर दिए हैं। क्योंकि इस डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम अपना इस टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश करी कि पब्लिक सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और उनके इन्वॉल्व करने से तकरीबन हमने पब्लिक सेक्टर से 3 करोड़ रुपए के काम कराए हैं, जिसके अंदर हमने 12 हमारे जो पार्क्स हैं वो अडॉप्ट किए हैं, जिसमें से 6 जो है पब्लिक सेक्टर के ताउन से बन चुके हैं। ऐसी हमने जो चौरंगियाँ मुख्तलिफ राउंड अबाउट्स हैं, वो 9 चौरंगियाँ हमने पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व करके उनसे काम कराया, जिस पे 6 तकरीबन बन चुकी हैं। इसी तरीके से प्ले ग्राउंड्स हैं 2, जिस पे अभी काम हो रहे हैं। तो हम इसके अंदर उनका पब्लिक सेक्टर्स का बड़ा ताउन चाहेंगे कि अगर ताउन हमें उनसे मिले तो हमारे काम जो है बहुत आसानी से हो सकेंगे। कराची शहर में नाजायज तजावुजात हमेशा से एक बड़ा मसला रहा है, और गुलशन इकबाल टाउन में भी इस मसले ने एक वबा की सूरत इख्तियार कर रखी है। आए दिन मुख्तलिफ मकामात पर बेहंगम तरीके से नाजायज तजावुजात का सिलसिला जारी है। नई मुंतखब क़यादत ने इस मसले को हल करने के लिए एक मरबूत प्रोग्राम तरतीब दिया। नाजायज तजावुजात को ख़त्म करने के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर हॉकर जोन कायम किए गए। ये हॉकर जोन इन अफराद के लिए हैं जो जगह न होने की वजह से फुटपाथों और दूसरे मकामात पर अपने कारोबार के सिलसिले में गैर मुस्तकिल तौर पर डेरा जमा लेते हैं। टाउन में फिलहाल 5 हॉकर जोन कायम किए गए, जो इंतहाई कामयाबी से इन लोगों के रोजगार का जरिया बने हुए हैं। गुलशन इकबाल टाउन में भी इंक्रोचमेंट के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला हमारा ये लियारी एक्सप्रेस वे जो बन रही है, उसमें जो तकरीबन पूरे लियारी एक्सप्रेस वे में 20,000 घर जो है मुतासिर हो रहे हैं, जिसमें मेरे टाउन में सबसे बड़ा इलाका आता है। ये लियारी एक्सप्रेस वे 16 किलोमीटर तवील है, जिसमें 8 किलोमीटर मेरे टाउन में आती। तो इसमें कम व बेश 7 से 8,000 घर जो है मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा सिटी नाजिम का, उन्होंने बड़ी हिकमत से और बड़ी खुले दिल के साथ जो है ना आवाम की बातें सुनी हैं और उनके मसाइल हल किए हैं। कराची में ये पहली मर्तबा हुआ है कि गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट बनाने के नतीजे में जो आबादियाँ मुतासिर हो रही हैं उनको जो है ना कंपनसेशन दिया गया है। हर फैमिली को 80 गज का प्लॉट दिया जा रहा है और 50,000 रुपये का चेक दे रहे हैं। सफाई और सैनिटेशन गुलशन इकबाल टाउन का बुनियादी मसला है, और टाउन की क़यादत इस मसले से निपटने के लिए एक जामे मंसूबे पर गौर कर रही है। गुलशन इकबाल टाउन में रोजाना 500 टन कूड़ा करकट मुख्तलिफ इलाकों से जमा होता है।
इस कूड़ा करकट को ठिकाने लगाना एक बहुत बड़ा मसला है। 1200 के करीब अमला और 30 गाड़ियों की मदद से रोजाना तकरीबन 300 टन कचरा लैंडफिल साइट जाम चाकरो पहुंचाया जाता है और तकरीबन 200 टन कचरा टाउन के मुख्तलिफ आबादियों में मौजूद रहता है, जो कि इत्मीनान बख्श नहीं है। इस मसले से निपटने के लिए दुनिया की तमाम जदीद शहरों में ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाते हैं। सफाई के इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए गुलशन टाउन में एक ट्रांसफर स्टेशन बनाने का मंसूबा तजर्बाती तौर पर शुरू किया गया है। इस ट्रांसफर स्टेशन में तमाम टाउन का कचरा जमा किया जा रहा है और लॉन्ग व्हीकल्स के जरिए इसको लैंडफिल साइट पहुंचा दिया जाता है। ट्रांसफर स्टेशन के मुस्तकिल कयाम के बाद इस बात के रोशन इम्कानात हैं कि टाउन में रोजाना की बुनियाद पर सफाई के मसले पर काफी हद तक काबू पा लिया जाएगा। गुलशन इकबाल टाउन पाकिस्तान का वाहिद टाउन है जिसने अपने रोजमर्रा के मामलात को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए कई इक़दाम किए हैं, जिसमें से एक बैनुल-अक़वामी शौक़ के हामिल इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मदद से अपने तमाम मामलात को साफ और शफाफ बनाना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में 2 टूल्स है जिसको हम टूल्स कहते हैं फॉर ट्रांसपेरेंसी। एक होता है इंटेग्रिटी पैक्ट। इंटेग्रिटी पैक्ट में एक्सेस टू इंफॉर्मेशन आ जाता है और प्रोक्योरमेंट आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सारा आ जाता है उसके अंदर। और दूसरा टूल है वो है ओपन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओपन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जैसे मैंने जिक्र किया, एक तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, फिर हर चीज जो है इंटरनेट पे हम डाल देते हैं। वी पुट एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट। ये हमें काफी टाइम लगा, 6 महीने तो सिर्फ हमें लगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने में। मगर मैं आपको ये बताऊं, इतनी मेहनत लोग उनके गुलशन टाउन के स्टाफ ने की है कि इस वक्त हमारे पास इंफॉर्मेशन इस हद तक है कि हमें ये पता कि कितने मैनहोल्स हैं, कितने खंबे हैं, कितने साइन बोर्ड्स हैं। हमें एक एक इंफॉर्मेशन हमें पता है। चौड़ा सड़क कितना है, लंबाई कितनी है, गार्डन्स कितने हैं, पार्क्स कितने हैं, स्कूल्स कितने हैं। यानी आप हमसे कहेंगे तो हम आपको उसी वक्त इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। गुलशन इकबाल टाउन को जदीद खुतूत पर उस्तवार करने के लिए इंतहाई साइंसी बुनियादों पर काम किया जा रहा है। मुंतखब क़यादत ने इब्तदाई से मुस्लिम के बारे में सोचा है। इसमें सबसे अहम मंसूबा कस्टमर सर्विस सेंटर का क़याम है, जिसकी तामीर तेजी से जारी है। इस सेंटर की तामीर पर 2 करोड़ रुपए लागत का तखमीना है। इसमें एक कंप्यूटराइज सर्विस सेंटर, काउंसिल, कमेटी रूम, गुलशन इकबाल टाउन काउंसिल और दीगर दफातर होंगे। ये कस्टमर सर्विस सेंटर टाउन में 13 यूनियन काउंसिलों में कंप्यूटर के जरिए बराह रास्त मुंसलिक होगा। इस सेंटर के कयाम से अवाम को अपने मसाइल के फॉलो अप करने की न सिर्फ सहूलत हासिल हो जाएगी, बल्कि वह अपने ज़ाती कंप्यूटर के जरिए से या टाउन और यूनियन काउंसिल में मौजूद कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए अपने मसाइल टाउन इंतजामिया तक पहुंचा सकेंगे। कस्टमर सर्विस सेंटर ऐसा नेटवर्क होगा जहां लोगों को अपनी शिकायत से मुताल्लिक फौरी मालूमात फराहम की जाएंगी। हमने ये तय किया कि जो फ़र्द भी हम तक पहुंचता है वो हमारा कस्टमर है, इसलिए कि वो हमें टैक्स देता है और हम उसको सर्विसेज फराहम करते हैं। तो बजाय इसके कि वो शिकायत कुनिंदा के तौर पर हमारे पास आए, हम ऐसा माहौल क्रिएट करें कि उसको एज ए कस्टमर ट्रीट किया जाए। हम अपनी प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं, वो हमें पैसे दे रहा है। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस करते हुए, इसको आगे बढ़ाते हुए हमने इसके क़याम का फ़ैसला किया। हमने आपसे कहा है कि हम तमाम वसाइल आपको लौटा देंगे, जो कुछ भी हमारे पास आएगा आपके हयाती कामों पर, आपकी शिकायत को दूर करने पर। यह हमारा न सिर्फ मिली फरीज़ा है, बल्कि हम इसको दीनी फरीज़े की हैसियत से आगे बढ़ा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसके ज़रिए से हम आपको मुतमईन करेंगे और अपने आप को भी, अपने ज़मीर को भी और अल्लाह के सामने जवाबदेह महसूस करते हुए अपने अल्लाह के सामने भी सुरखरू हो सकेंगे। टाउन के आइंदा के मंसूबों में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों की मुसलसल फराहमी के लिए एक मरबूत जोग्राफियाई निज़ाम GIS इख्तियार करने का फैसला किया है। इस वेबसाइट के जरिए लोग टाउन के बारे में हर तरह की मालूमात हासिल कर सकेंगे। हमारे आइंदा के मंसूबों में यूनिवर्सिटी रोड की असर नो तामीर भी शामिल है। हसन स्क्वायर कराची, जिसके चारों अतराफ सड़कों पर ट्रैफिक का ना खत्म होने वाला रश रहता है, ट्रैफिक के इस दबाव को कम करने के लिए गुलशन इकबाल टाउन की मुंतखब क़यादत ने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ताउन से हसन स्क्वायर पर इंतहाई जदीद और खूबसूरत फ्लाईओवर तामीर करने का मंसूबा बनाया है। इस मंसूबे पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है।
वसाइल की कमी की वजह से हमने प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब से की दरख्वास्त की थी कि हमें कराची के मसाइल को हल करने के लिए एक पैकेज की ज़रूरत है, फाइनेंशियल पैकेज की, ताकि हम तमाम कामों को जो रुके हुए हैं हमारे डेवलपमेंट के 29 बिलियन का पैकेज हमने उनके सामने पेश किया था, प्रेजेंटेशन की थी, और उस प्रेजेंटेशन के नतीजे के अंदर 29 बिलियन का पैकेज वो मंजूर हो गया है। हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हम BOT पे कराना चाहते हैं वो इंशाअल्लाह कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्द जबकि इस वक्त पाइपलाइन के अंदर हैं, लेकिन जब तमाम चीज़ें प्रोजेक्ट हमारे ज़मीन पर आएंगी इंशाअल्लाह तो लोग उसके अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। गुलशन इकबाल को हमने गुलशन में तब्दील करने का अहद कर रखा है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि गुज़िश्ता 2 सालों से हम कराची में होने वाली सालाना फूलों की नुमाइश में चैंपियन ऑफ द फ्लावर शो का एजाज हासिल कर रहे हैं। कामयाबी का ये सफर जो अभी शुरू हुआ है, इसकी तकमील के लिए हमें और आपको मिलकर गुलशन की तामीर करनी है और गुलशन इकबाल टाउन को गुलशन पाकिस्तान बनाना है। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं वही, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जहाँ फिजा मेरा तो ख़य्यल है तो शीरी है सुखन, ऐ वतन यारे वतन।